ریت کے نیچے دفن وہ شہر جن کے ستون آسمان کو چھوتے تھے، وہ انسان جن کے قد عام انسانوں سے کہیں بڑے تھے، اور وہ قوم جس نے پورے غرور سے کہا تھا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ یہ کہانی ہے قوم عاد کی۔ زمین پر حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد ایک نیا دور شروع ہوا۔ پرانی بستیاں مٹ چکی تھیں، انسان دوبارہ زمین پر پھیل رہے تھے اور نئی قومیں جنم لے رہی تھیں۔ انہی قوموں میں ایک قوم ایسی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی جسمانی طاقت، لمبا قد، وسیع زمین اور قدرتی وسائل عطا کیے۔ یہ قوم عاد کہلاتی ہے۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد آنے والی پہلی بڑی طاقتور قوم سمجھی جاتی ہے۔ تاریخی و تفسیری روایات کے مطابق یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ایک شاخ تھی، جو وقت کے ساتھ ایک منظم، مضبوط اور طاقتور معاشرے میں تبدیل ہو گئی۔ یہ قوم عرب کے اس خطے میں آباد تھی جسے قرآن احقاف کے نام سے یاد کرتا ہے۔ احقاف کا لفظ ریت کے لمبے اور خمدار ٹیلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ علاقہ آج کے یمن، عمان اور جنوبی عرب کے درمیان واقع سمجھا جاتا ہے، مگر اس وقت یہ علاقہ آج کی طرح بنجر اور ویران نہیں تھا۔ یہ خطہ سرسبز تھا۔ یہاں زیر زمین پانی وافر مقدار میں موجود تھا، بارشیں ہوتی تھیں، نہریں بہتی تھیں اور زمین زراعت کے لیے موزوں تھی۔ قوم عاد نے اسی زمین پر اپنے شہر آباد کیے۔ قوم عاد کے افراد عام انسانوں جیسے نہیں تھے۔ وہ قد میں لمبے، جسم میں مضبوط، چوڑے سینے والے، موٹے بازوؤں اور طاقتور ٹانگوں والے لوگ تھے۔ ان کے جسمانی ڈھانچے میں سختی اور مضبوطی نمایاں تھی۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ ان کی جسامت ایسی تھی کہ وہ بڑے بڑے پتھروں کو اکیلے اٹھا لیتے تھے۔ ان کی طاقت صرف جسم تک محدود نہیں تھی، بلکہ ان میں اجتماعی نظم بھی تھا۔ وہ منظم تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور اپنی طاقت پر مکمل یقین رکھتے تھے۔ یہی یقین آہستہ آہستہ غرور میں بدلنے لگا۔ قوم عاد کی آبادی بڑے بڑے شہروں میں تقسیم تھی۔ ان کے شہر کھلے میدانوں میں نہیں بلکہ مضبوط بنیادوں پر تعمیر کیے گئے تھے۔ ان شہروں کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کے اونچے ستون تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن انہیں ارم ذات العماد کہہ کر یاد کرتا ہے۔ یہ ستون صرف عمارتوں کا حصہ نہیں تھے، بلکہ طاقت اور عظمت کی علامت تھے۔ ستونوں پر کھڑے محلات، وسیع صحن، بلند دروازے اور مضبوط دیواریں ان کے شہروں کی شناخت تھیں۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ دور سے دیکھنے والا بھی ان کی عظمت محسوس کرے۔ قوم عاد کے گھروں کی تعمیر میں پتھر اور چٹانوں کا زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر رہائشی ڈھانچے بناتے تھے۔ ان کے پاس پتھر تراشنے کے اوزار موجود تھے، جن کی مدد سے وہ بڑے اور مضبوط بلاکس تیار کرتے تھے۔ یہ کام صرف رہائش کے لیے نہیں بلکہ اپنی طاقت دکھانے کے لیے کیا جاتا تھا۔ ان کا روزمرہ طرز زندگی طاقت کے گرد گھومتا تھا۔ نوجوانوں کو بچپن سے ہی جسمانی مشقت کا عادی بنایا جاتا۔ خوراک میں گوشت، اناج، پھل اور دودھ شامل تھا۔ مویشی پالنا ان کی معیشت کا اہم حصہ تھا۔ ان کے پاس بڑے ریوڑ ہوتے تھے جن سے نہ صرف خوراک بلکہ لباس اور تجارت کے وسائل بھی حاصل کیے جاتے تھے۔ لباس عموماً موٹے کپڑے کا ہوتا تھا جو گرمی اور مشقت دونوں کو برداشت کر سکے۔ مرد لمبے کپڑے پہنتے، کمر پر پٹکے باندھتے، جبکہ بازوؤں پر چمڑے کے پٹے ہوتے۔ یہ لباس بھی طاقت اور سختی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ عورتیں زیورات استعمال کرتی تھیں جو پتھر، ہڈی اور دھات سے بنے ہوتے تھے۔ یہ زیورات سماجی حیثیت کی علامت تھے۔ قوم عاد کا سماجی نظام سرداروں کے گرد گھومتا تھا۔ ہر شہر یا قبیلے کا ایک سردار ہوتا جو فیصلے کرتا اور طاقت کا مظاہرہ کرتا۔ یہ سردار سب سے زیادہ مضبوط، جنگجو اور بااثر افراد میں سے ہوتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سردار طبقہ خود کو عام لوگوں سے برتر سمجھنے لگا۔ یہی طبقہ بعد میں حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا سب سے بڑا مخالف بنا۔ قوم عاد کے مذہبی عقائد میں بت پرستی شامل تھی۔ وہ مختلف قوتوں کے لیے الگ الگ بت رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہی بت انہیں طاقت، بارش اور حفاظت دیتے ہیں۔ اللہ کو وہ یا تو بھول چکے تھے یا اس کا انکار کرنے لگے تھے۔ اسی ماحول میں حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وہ خود قوم عاد میں سے تھے۔ وہ ان کی زبان جانتے تھے، ان کے رسم و رواج سے واقف تھے اور ان کی نفسیات کو سمجھتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو ایک ہی بات کی طرف بلایا، اللہ کی عبادت اور غرور کو چھوڑ دینا، مگر طاقت میں ڈوبی قوم نے اسے کمزوری سمجھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی آواز قوم عاد کے شہروں میں نئی نہیں تھی، مگر اس کی گونج پہلے دن سے مختلف تھی۔ وہ کسی اجنبی سرزمین سے نہیں آئے تھے، نہ ہی کسی اور نسل سے تعلق رکھتے تھے۔
वो इन्हीं पहाड़ों के दरमियान पले बढ़े थे, इन्हीं शहरों की गलियों में चले थे और इन्हीं लोगों के साथ जवान हुए थे। यही वजह थी कि जब उन्होंने बात की तो कौम जानती थी कि ये शख्स इनकी हकीकत से वाकिफ है। उन्होंने अपनी कौम को इस अंदाज में मुखातिब किया जो समझाने वाला था, ना कि हुक्म चलाने वाला। उन्होंने याद दिलाया कि ये ताकत, ये कद्दो-कामत, ये ज़मीन और ये वसाइल किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं, ये सब अता किए गए हैं। मगर कौम आद के सरदारों ने इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। सरदारों का रद्द अमल फौरी था। जो ताकत और क़ियादत के आदी थे, किसी ऐसे पैगाम को कबूल नहीं कर सकते थे जो उनके गुरूर को चैलेंज करता हो। उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया कि वो कौम की वहदत को तोड़ना चाहते हैं, कि वो कदीम रिवायात को ख़त्म करना चाहते हैं और कि वो ताकतवर कौम को कमज़ोर बनाना चाहते हैं। कौम के आम लोग दो हिस्सों में बंटने लगे। कुछ वो थे जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बातों को गौर से सुनते थे क्योंकि उनके दिलों में अभी तक सवाल बाकी थे, और कुछ वो थे जो सरदारों के पीछे खड़े थे क्योंकि ताकत हमेशा खौफ के जरिए वफादारी हासिल करती है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बार बार यही बात दोहराई कि वो कोई बदला, कोई उजरत, कोई मकाम नहीं मांग रहे। उनका पैगाम सादा था मगर इसके नताइज बड़े थे। यही सादगी कौम के लिए सबसे ज्यादा नाकाबिल कबूल थी। वक्त गुजरता गया मगर कौम का इनकार बढ़ता गया। इसी दौरान अहकाफ की ज़मीन में तब्दीली आना शुरू हुई। वो इलाका जो कभी पानी से भरपूर था, आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होने लगा। नहरी कमज़ोर पड़ने लगी, ज़मीन की नमी ख़त्म होने लगी और फसलें पहले जैसी ना रहीं। ये तब्दीली अचानक नहीं थी, ये एक तदरीजी अमल था। कई मौसम गुजरे मगर बारिश न हुई। कौम आद ने इसे वक्ती मसला समझा। उनके नज़दीक ये फितरत का एक आम उतार चढ़ाव था, मगर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये महज मौसमी तब्दीली नहीं। उन्होंने कौम को बताया कि ये एक तंबीह है, एक मोहलत है, मगर सरदारों ने इस बात को भी रद्द कर दिया। उनका कहना था कि अगर वाकई कोई ताकत है तो वो हमारी ज़मीन, हमारी शहर और हमारी ताकत को कैसे छीन सकती है। इसी दौरान आसमान पर एक दिन गैर मामूली मंजर नमूदार हुआ। दूर उफक पर बादल दिखाई दिए। ये बादल आम बादलों जैसे नहीं थे। रिवायात के मुताबिक इस मौके पर कौम आद के सामने 3 मुख्तलिफ किस्म के बादल जाहिर हुए। हर बादल की हैयत, रंगत और कैफियत अलग थी। पहला बादल हल्का और सफ़ेद था, उसमें नरमी थी, सुकून था, मगर वो ज्यादा घना नहीं था। कौम आद ने इसे देखा मगर ज्यादा तवज्जो न दी। उनके नजदीक ये कमजोर बादल था, ऐसा बादल जो उनकी जमीन को सैराब नहीं कर सकता था। दूसरा बादल सुर्खी माइल था, उसकी रंगत में शिद्दत थी और उसके गिर्द एक अजीब सी हैबत महसूस होती थी। इस बादल को देखकर कुछ लोग खौफजदा हुए, मगर सरदारों ने इसे नहूसत की अलामत करार देकर मुस्तरद कर दिया। तीसरा बादल स्याह था, बहुत घना, बहुत फैला हुआ और आसमान पर छा जाने वाला। ये बादल देखने में ऐसा था जैसे इसमें बेपनाह पानी भरा हो। कौम आद की नजरें इसी पर जम गईं। उन्होंने आपस में कहा कि यही वो बादल है जो हमारी खुश्क जमीन को जिंदा करेगा, यही वो बादल है जो हमारी कुव्वत को दोबारा बहाल करेगा। उनकी खुशी काबिल दीद थी। उन्होंने इसे रहमत समझा, हालांकि हकीकत कुछ और थी। ये वो लम्हा था जहां कौम आद ने अपनी आखिरी गलती की। जिस बादल को उन्होंने बारिश का जरिया समझा, वो दरअसल बारिश नहीं बल्कि हवा का जखीरा था। एक ऐसी हवा जो आम नहीं थी। ये हवा न सिर्फ ताकतवर थी बल्कि मुसलसल थी। इसमें सर्दी थी, काठ थी और ऐसी शिद्दत थी जो किसी भी जिस्म को बेबस कर सकती थी। जब वो बादल अहकाफ के ऊपर पहुंचा तो आसमान का रंग बदल गया। दिन में अंधेरा सा छा गया। हवा ने आहिस्ता आहिस्ता हरकत करना शुरू की। पहले ये सिर्फ तेज झोंके थे जिन्हें लोग मामूल समझकर नजरअंदाज करते रहे। फिर हवा की शिद्दत बढ़ने लगी, रेत उड़ने लगी, दरख्त झुकने लगे और खेमे हिलने लगे। लोग अपने घरों की तरफ लौटे मगर उन्हें अभी भी खतरे का मुकम्मल अंदाजा नहीं था। हवा का रुख बदलता गया और उसकी आवाज़ तेज होती गई। ये आवाज़ आम हवा की नहीं थी, इसमें एक मुसलसल गरज थी, जैसे कोई भारी शय ज़मीन से टकरा रही हो। यही वो मरहला था जब खौफ ने खुशी की जगह लेना शुरू की। कौम आद के मजबूत घर, जिनकी बुनियादें पत्थरों में जमी हुई थी, अब इस हवा के सामने आजमाइश में थे। सुतून हिलने लगे, दीवारों में दरारें पड़ने लगी और छतों से मलबा गिरने लगा। ये हवा एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकी। दिन गुजरा, रात आई और हवा चलती रही। लोग एक दूसरे को ढूंढते रहे मगर आवाजें हवा में गुम हो जाती थीं। ये वो आगाज था जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। हवा अब सिर्फ तेज नहीं थी, वो मुसलसल हो चुकी थी, एक ऐसी शिद्दत के साथ जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दिन और रात की तमीज खत्म हो गई थी। आसमान पर सूरज नजर नहीं आता था, सिर्फ गर्द, रेत और घना अंधेरा था जो अहकाफ के पूरे इलाके पर छा चुका था। ये आंधी आम मौसमी तूफान नहीं थी, इसकी रफ्तार गैर मामूली थी
और इसका दबाव ऐसा था कि ज़मीन पर खड़े इंसान के लिए तवाज़ुन बरकरार रखना मुमकिन नहीं रहा था। कौम आद के लोग, जिन्हें अपनी जसामत और ताकत पर हमेशा नाज रहा था, अब अपने ही कदमों पर खड़े नहीं रह पा रहे थे। हवा जब किसी इंसान से टकराती तो उसे ज़मीन से उठा लेती। बड़े बड़े मजबूत जिस्म फ़िज़ा में यूं मुअल्लक हो जाते जैसे वो वज़न ही न रखते। फिर वही हवा उन्हें ज़ोर से ज़मीन पर पटकती, बार बार, मुसलसल, यहाँ तक कि जिस्म टूट जाते। कुरान जिस मंज़र को बयान करता है वो किसी एक लम्हे की तस्वीर नहीं बल्कि कई दिनों का तसलसल है। 7 रातें और 8 दिन। इस पूरे अरसे में हवा न थमी न कमज़ोर पड़ी। इसमें कोई नरमी नहीं थी, कोई वक्फा नहीं था। कौम आद के शहर जो मजबूत पत्थरों से बने थे अब बिखरने लगे। ऊंचे सुतून जो कभी ताकत की अलामत थे पहले हिलने लगे, फिर एक एक करके ज़मीन बोस हो गए। दीवारें गिरने लगीं, छतें टूट गईं और वो महल्लात जिन पर कौम फ़ख्र करती थी मलबे के ढेर बन गए। लोग अपने घरों में छुपने की कोशिश करते मगर हवा दरवाज़ों और दरारों से अंदर दाखिल हो जाती। कोई जगह महफूज नहीं रही थी। जो बाहर निकलता वो हवा में उठ जाता, जो अंदर रहता उस पर छत या दीवार आ गिरती। इस दौरान कौम आद के सरदार, जो हमेशा सबसे आगे रहते थे, सबसे पहले बेबस नजर आए। उनकी आवाज़ें जो कभी हुक्म देती थीं अब चीखों में बदल चुकी थी, मगर ना कोई उनकी मदद कर सकता था, ना वो खुद किसी को बचा सकते थे। आंधी के दौरान इंसानों के साथ जानवर भी तबाह हुए। बड़े रेवड़ बिखर गए, खेमे उखड़ गए, दरख्त जड़ों से निकल गए। जमीन की वो जरखेजी जो कभी आहकाफ की पहचान थी अब मिट्टी और रेत के नीचे दबने लगी। हर गुजरती रात के साथ तबाही बढ़ती गई। लाशें जमीन पर पड़ी रहती मगर कोई उन्हें उठाने वाला नहीं था। हवा की आवाज़ इतनी शदीद थी कि किसी की पुकार किसी तक नहीं पहुंच सकती थी। ये वो मरहला था जब कौम आद को ये एहसास हुआ कि जिस ताकत पर वो फख्र करते थे वो उनके किसी काम नहीं आ रही। मगर अब ये एहसास बेफायदा था, फैसला हो चुका था। इस तमाम तबाही के दौरान हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और वो चंद लोग जो उन पर ईमान ले आए थे महफूज रहे। वो उसी ज़मीन पर मौजूद थे मगर अजाब उन तक नहीं पहुंचा। हवा उनके इर्द गिर्द से गुजरी मगर उन्हें नुकसान न पहुंचा। ये हिफाजत किसी दीवार या ताकत की वजह से नहीं थी बल्कि एक हुक्म की वजह से थी। जब 7 रातें और 8 दिन पूरे हुए तो आंधी अचानक रुक गई। खामोशी छा गई, वो खामोशी जिसमें ना कोई आवाज़ थी ना कोई हरकत। हवा के रुकने के बाद जो मंजर सामने आया वो मुकम्मल वीरानी का था। जहाँ शहर थे वहाँ मलबा था, जहाँ लोग थे वहाँ बेजान जिस्म पड़े थे। कुरान इस मंजर को यूं बयान करता है कि वो लोग ऐसे पड़े थे जैसे खजूर के गिरे हुए तने, लंबे मजबूत जिस्म मगर बेजान। उनकी जिसामत बाकी थी मगर ताकत खत्म हो चुकी थी। कौम आद मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी। ना कोई सरदार बचा, ना कोई शहर, ना कोई निज़ाम। वो तहजीब जो अपने वक्त में बेमिसाल थी चंद दिनों में माजी बन चुकी थी। आंधी के बाद अहकाफ की ज़मीन बदल चुकी थी। वो इलाका जो कभी सरसब्ज था अब बंजर हो गया। रेत ने हर चीज को ढांप लिया, पानी के आसार मिट गए, जमीन ने अपने ऊपर बसने वालों को दफन कर लिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इस वीरान सरजमीन को छोड़ दिया। उनके साथ वो लोग थे जो ईमान लाए थे। वो जानते थे कि ये जगह अब आबाद होने के लिए नहीं बल्कि याद रखने के लिए है। कौम आद का नाम उस दिन के बाद जिंदा ना रहा मगर उनका जिक्र बाकी रहा। उनके शहर खत्म हो गए मगर उनका अंजाम महफूज कर लिया गया। उनकी ताकत मिट्टी बन गई मगर उनकी कहानी रह गई। ये वो मरहला था जहां एक ताकतवर कौम का बाब मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में ये भी जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।